Both of you look here. Here. क्या बाइट्स अभी क्या दे रहे बताओ? Hardly seen it in email. So this is special, you know. It's only because of me that she's here. See, actually, it's about the skin color bias that that we face every day in society. So the seed also came from that only. I also, I've grown up in this society, and it's a thing that is prevalent everywhere and in every family, I guess. So that is from where I got this concept and developed it into a script, and finally we are here releasing it. Actually, I have watched this film in Mami long back, and I was extremely blown away by this film because, of course, the concept is very strong. कि हमारी जो सोसाइटी में हमेशा सफ़ेद रंग या गोरे रंग को कहा जाता है कि सुंदर है, लेकिन सुंदरता की तो कोई परिभाषा नहीं होती है. तो अपना जो इनका कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत खूबसूरत ही है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बनाया है इसे, मैंने जब इन्हें देखा था तो मुझे लगा था कि दिस फिल्म इज़ अहेड ऑफ इट्स टाइम. और अब ये वक्त है जहाँ जो दर्शक हैं, जो ऑडियंसेस हैं, ये ढूंढ रहे हैं कि पावरफुल कॉन्सेप्ट्स और स्टोरीज हों. So I feel this is one of the most powerful story that I have seen lately, and I'm so glad that we are all going to see together. Thank you. So, अक्षय ना जब मेरे पास ये कैरेक्टर लेकर के आए थे ये मूवी, मुझे ना ये instantly I just kind of it just attracted me instantly, and the reason being is because it was so real. This is something which I have faced in my life. Like I come from Lucknow, and it's like a small town where people they always pick up ठीक है रंग दबा हुआ है, थोड़ा गोरा हो जाए, शादी में प्रॉब्लम आएगी, ये आएगी, कुछ लगाओ, उपटन लगाओ. Like it's like so much, and I was also a sports person. I was a swimmer. तो वो तो और करते करते टैन हो जाता था. So like my relatives, अरे क्या स्पोर्ट्स करा रहे हो, और काली हो जा रही है. So I had like white teeth on my black face. So all those things were so real, and it just instantly touched me. So I just thought, okay, I think it needs guts, it needs conviction, it needs lot of thought to actually pick a subject like this, and then all the more to present it in an entertaining way, which he has successfully managed to. So probably I think for an audience to go out in theatre and watch out for something very entertaining is what this film has. Along with that, it has a very powerful message. So that sums it up, and it was for me a very energetic experience. While I was doing this character, to just be in this character was very draining also, because that was something, every scene was so relatable, which I have gone in my life. So even in my acting career is also something which I have faced because of my skin complexion, my skin tone. So yeah, I think kudos to Akshay for bringing this up and then presenting it in such a way. Okay, I don't know. There are so many words that can actually define this. It's
मैं कैसे खुद कहूँ, ये तो मतलब मेरे लिए तो ऑब्वियसली एक शब्द जो कह रहे हैं आप, बस मैं यही कहूँगा कि हम सब ने मेहनत की है, सारी टीम ने मेहनत की है। जिस तरीके से फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में रिसीव किया गया था और जिस तरीके से हमने कुछ फोकस स्क्रीनिंग की यहाँ पे और वो आम जनता ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, हम बहुत आई थिंक अद्भुत था मेरे लिए वो बहुत। आई फील आज अगर आप कोई मेरे से पूछता है, आई डोंट नो, मतलब आई फील ब्लेस्ड कि आई कुड पुल इट ऑफ ऑल दैट। आई थिंक द काइंड ऑफ एनर्जी वी हैड ऑन द सेट्स because of the people and the crew involved, I think it's that team effort that we are here today, and whatever the kind of film that we have made, final result is because of the whole team. Yeah. And I'd like to add to what he said. It's simply because every single person on the set, from the spot boy to the DOP to the director, actors, everybody, the entire group, believed in this concept. So the energy was all there. Everybody manifested, so it turned out to be like this. Yeah. So yeah, that's it. But where is Sulagna? Or where's Pinky? Where's Pinky? Sulagna? Oh my God, she lives really far. She lives in Ugraj. बहुत ट्रैफिक आया होगा। So क्या बात है? Congratulations. Like I said, it was way ahead of its time. This is the right time to do it. Thank you. I'm so glad that you said. All the very यार शूटिंग में बंदा नहीं लग रहा। कौन पूछेगा, इसकी हिम्मत है। शुरू करो ना, आप सीनियर हैं। आशीर्वाद मेरा। मैंने ट्रेलर काफ़ी एक्साइटिंग था। इसमें देखो जो मैं ट्रेलर का बहुत अच्छा है और डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ वेरी प्रॉमिसिंग फिल्म बिकॉज कंटेम्प्रेरी है सब्जेक्ट। ये हमेशा जब तक मानवता रहेगी तब तक ये सब्जेक्ट रहेगा। सो आई थिंक दैट दिस नीड्स टू कम आउट एंड पीपल सी इट इन गुड लाइट। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। So I've seen the trailer and I think I love the characters जो भी दिखाए हैं. Without naming people, I just love the characters. I think सबको देखकर it's not looking like they're actors. They're looking like characters. I love that about the trailer. And of course Akshay, I have worked with Akshay. So I know him as an actor and I know him as a director. मैं जानती हूँ कि as a director उनका vision क्या है, as an actor उनका passion क्या है. So I'm really waiting to see what he's really done of this film and this story and this concept because like I said I worked with him and I know what he's capable of. So I'm really waiting for this. मैं बहुत खुश हूँ इसलिए क्योंकि आजकल एक ऐसा दौर चल रहा है जहाँ पर सारी फिल्में या बहुत सारी फिल्में OTT पर रिलीज़ हो रही हैं और पिंकी ब्यूटी पार्लर जैसी फिल्म जिसने इतने सारे फेस्टिवल्स में बहुत सारे अवार्ड जीते, उसे बिग स्क्रीन पर रिलीज़ होने का एक मौका मिल रहा है, वो बहुत अच्छी बात है एंड इट्स अ फैंटास्टिक सब्जेक्ट एंड ऐसी फिल्मों को और ऑडियंस आकर देखें, सपोर्ट करें। आप मीडिया वाले इतना अच्छा कवरेज दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है एंड अक्षय सर जो है आई हैव वर्कड विद हिम एज एन एक्टर एंड एज अ डायरेक्टर, सो आई लव हिम एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दिस फिल्म एंड इट्स लुकिंग सो गुड एंड इट्स अ ग्रेट सब्जेक्ट। थैंक यू। अभी देखी नहीं है, मैंने देखने के बाद पूछना है सर। ट्रेलर देख के आई वुड से वेरी रियल, आई वुड यूज द वर्ड रियल. मुझे बहुत रियल स्पेस में लगा ये ट्रेलर. इट्स रेलिवेंट। धमाकेदार पिक्चर है, धमाकेदार। धमाकेदार. Then
हाँ हाँ बहुत ज़रूरी है सर। क्या? सर थैंक यू, आप आगे देखो। नहीं नहीं, मैं आया ही तेरी वजह से मेरे भाई। सेम है। ये बात बिल्कुल राइट है कि मैं ऐसे, स्पेशली जब मैं खुद काम में हूँ तो मैं बहुत कम निकलता हूँ बाहर, पर मेरी यहाँ आने की वजह ये इंसान है। और ये जितना अच्छा एक्टर है, जितना अच्छा मेकर है, उससे बेहतर इंसान है। और मेरी आने की वजह सिर्फ ये अक्षय। सी एक्चुअली सबसे पहले मैं ये कहूँगा, मैं सर को भी बोल चुका हूँ कि सर मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। अगर सर की आप जर्नी देखेंगे, जिस तरीके से इन्होंने शुरुआत की और आज एक लीजेंड बन गया है, तो हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत इंस्पिरेशन है। और ये इंस्पिरेशन मैं रोज़ लेता हूँ, यू नो। मतलब कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो ये मतलब एक क्लब वाली जो भूमिका होती है ना, तो ये वैसी है कि सर ने बहुत कुछ दिया है जो हमने फिल्मों से लिया, और पर्सनली मैंने बहुत कुछ सीखा है सर से। इनफैक्ट जब फिल्म की ये रिलीज़ वगैरह भी होती है तो मैं सर से पूछता रहता हूँ, सर क्या करूँ, कैसे करूँ, यू नो। एंड ही इज़ ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी एंड गिव मी ऑल दिस एडवाइसेस। जेन्युइन एडवाइस मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कम मिलता है। तो सर से मुझे हमेशा यहाँ से एडवाइस मिली है। तो नहीं, और नहीं, ये बहुत ज़रूरी फिल्म है। एक मैं उसकी वजह भी बताता हूँ। ऐसे वाले दौर में जब हम लोग स्पेक्टिकल की बात कर रहे हैं, बड़ी फिल्मों की बात कर रहे हैं, एक ग्रैंडर की बात कर रहे हैं, उधर एक सोल वाली फिल्म, एक पर्पस वाली फिल्म को लेके आना, ये भी अपने आप में गट्स है। पर ये अटेम्प्ट हमारे यहाँ से होते रहने चाहिए, ये हमेशा से मेरा मानना है। और ये मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से भी बोल सकता हूँ कि जब मैं तनुवेट्स मनु कर रहा था तो मुझे भी नहीं पता था वो एक छोटी साइज़ की फिल्म थी, वो कितनी इम्पोर्टेंट थी, ये उस वक्त मुझे नहीं महसूस हो रहा था। पर जब वो फिल्म चल गई और किसी वजह से चल गई, मुझे ये समझ में आया कि ना वक्त अपने आप एक रोटेशन के बाद आता है जो आपको बताता है कि हाँ अब थोड़ा सा वक्त बदलेगा। सो अक्षय की ये फिल्म भगवान करे बहुत चले, बट ये इम्पॉर्टेंट फिल्म इसलिए क्योंकि इस साइज़ की फिल्म का भी ना एक सर्टन एक्सेप्टेंस ऑडियंस की तरफ होना ज़रूरी है। वो तब तक नहीं होगा जब तक हम ऐसी फिल्में नहीं बनाएंगे। यार मैं टैक्स फ्री चीज़ को तो मैं, क्योंकि जब ये फिल्म बना रहे होंगे इनके मन में ये कभी नहीं होगा कि ये टैक्स फ्री हो जाए। और टैक्स फ्री सामने वालों को लगना चाहिए टैक्स फ्री हो जाए। हमारी तो नीयत फिल्म बनाने की होती है, ऑडियंस तक पहुंचने की होती है। वो टैक्स फ्री पहुंचे या विदाउट टैक्स फ्री पहुंचे। थैंक यू, थैंक यू। मैं पहले फ्रेम से विश्वनाथ इधर आओ। तो ये कौन सा है? जोरों के बदतमीज। दिन के दिन लंबी होती अबे भाई अरे, so good to see you. तुम लोग इधर आओ। अच्छा। आप
बहुत ज़्यादा अच्छा था और बहुत ज़्यादा फन किया हम सब ने, बहुत अच्छा खाना खाया बनारस में, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और शूटिंग करते वक्त लगा कि हम फैमिली हॉलीडे में थे, थैंक्स टू अक्षय सर। तो ऐसा लग रहा था कि हम छुट्टी मनाने आए और उसी चक्कर में हमारी फिल्म भी शूट हो गई, तो बहुत अच्छा लगा। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मैंने हमेशा बिलीव किया है। आई हैव नेवर एंडोर्स्ड अ फेयरनेस क्रीम एंड आई हैव ऑलवेज बिन शॉक्ड कि लोगों की सुंदरता को उनके स्किन कलर से कंपेयर करते हैं, तो मुझे हमेशा ये शॉकिंग लगता है। एंड मुझे जो लोग सुंदर लगते हैं, बाकी लोगों को वो सुंदर नहीं लगते थे। मैंने ये क्या कन्फ्यूजन है, मेरे में कुछ गड़बड़ है कि दुनिया में। बट जैसा सर ने कहा, नज़र का ऑपरेशन हो सकता है, नज़रिया का नहीं। सो वही बात है। मैं खुद पर्सनली मेकअप तो हमको करना ही पड़ता है, वरना आप लोग आएंगे नहीं देखने हमें तो थोड़ा बहुत मेकअप तो स्क्रीन पे करना पड़ता है। पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो मतलब हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं, बट फेयरनेस क्रीम्स कोई यूज़ नहीं करता है फॉर श्योर। इस मूवी के अंदर ऐसा कोई किस्सा है जो आप हमसे शेयर करना चाहिए, जो आपको लगा कि हाँ ये बहुत मेरे क्लोज है, कोई ऐसा सीन? किस्से तो बहुत सारे, सबसे ज़्यादा क्लोज ये है जब मैंने एक सीन था जिसमें मुझे ठंडाई पीनी थी। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने ठंडाई कभी नहीं पी। वो पहला दिन था जब मैंने ठंडाई पी थी और मैंने 5 ग्लास 6 ग्लास 7 ग्लास ठंडाई पी थी। तो उसके बाद मैंने आज तक ठंडाई नहीं पिया। आई थिंक अब टाइम हो गया है, आई थिंक वी कैन गो बैक एंड ट्राई ठंडाई वंस मोर। आपसे जाना चाहूँगा आपको आपका कैरेक्टर कैसा लगा, पहले बताइए, मतलब इस मूवी के अंदर? बहुत अच्छा लगा, मतलब जैसे कि देख रहे हैं और बिल्कुल अलग टाइप का ही चैलेंजिंग रोल था। बाकी तो आप प्लूटो से पूछो या प्लाटो, कौन सही है आप बताओ। कॉन्सेप्ट बहुत कमाल का है कि मतलब पहली बार उसने सुनाया, उसने बोला कि पूरी नरेशन देते हैं, उससे पहले तुमको 1 लाइन सुनाए थे। तो जैसे 1 लाइन सुनाए तो मैंने कहा कि डन, नरेशन की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली तुम बहुत अच्छा लिखोगे, होनी भी है साथ में, तो मज़ा आएगा। सर आपने ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर किए अभी तक, लेकिन इस कैरेक्टर में क्या अलग था बाकी कैरेक्टर? सर आपने क्या बताया? जेन्युइनिटी, एकदम जेन्युइन नेचुरल होने के साथ साथ ना, मुझे कॉमेडी हम लोग कोई नहीं कर रहे थे, और वो जिसको कहते हैं ना रस निष्पत्ति, वो हो रहा था। और वो जब सारे लाइटमैन और सारे सेटिंग के लोग हंसने लगे ना, तब हम लोग को लगता है कि यार रियल होते हुए भी हम लोग ह्यूमर दे पा रहे हैं, तो ये अलग था, अच्छा था। फिर आप इस पूरी मूवी को अगर एक शब्द में बयां करना चाहते हो, कौन सा शब्द है? जो जैसा है वो वैसा ब्यूटीफुल है। आप 3 शब्द, एंटरटेनिंग है, बट उसके साथ एक ब्यूटीफुल मैसेज भी है। और आप एंगेज रहेंगे थ्रू आउट द फिल्म, आप एंटरटेन रहेंगे, और साथ ही आप घर जाके 100% अपनी फैमिली के साथ ये डिस्कशन ज़रूर करेंगे कि गोरा और काला में फ़र्क करना गलत है। तो यही हम चाहते हैं कि लोग इस बारे में बात करें और ये चीज़ रेलेवेंट ना रहे ये टॉपिक, और लोग पीपल सी बियॉन्ड स्किन कलर। सर से पूछना पड़ेगा ये सवाल। नहीं, ऑफकोर्स हम देखेंगे, बट उसके लिए दो महीने लगेंगे। पहले हमने थिएटर contract आइए। किया हो कि 8 हफ्ते तक कहीं नहीं आ सकती, तो उसके बाद आएगी डेफिनेटली। चले, आई थिंक हम Thank you. स्क्रीनिंग पे चलते हैं। प्लीज लेट्स गो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। कहाँ गया? अच्छा इंद्रेश इंद्रेश आ जाओ। आगे आ जाओ। मैंने भी आज बहुत अच्छा किया तुमने ये काम। ये भी ले लो। बीच में अच्छा, मुझे भी आप कोई पिक्चर में हमारे बीच में हो। इधर हमारे के इंद्रेश और वो। हाँ, ओके, अब उधर भी गाने आता है। ओके ओके।
Okay, ये रहा. Thank you. Okay, I think relate with it itself is very challenging, you know, because that's something which is a very pain point. We as an individual, we are immune to these things because it just doesn't matter. But to play these things, there is a, if you see towards the end of the film, there's a data. कि इस काले गोरे के भेद के चक्कर में ना, how many deaths actually happen, how many suicides actually happen. This is a very crucial pain point of the film. So I think to relate with that pain point was very challenging. And in every scene, with every, आपने तो देखी हुई है, there are scenes जहाँ पे देख के लगता नहीं है आप दोनों बहनें. And in reality, I have a younger sister who's like a milky white, you know, absolutely total fair. तो ये सब चीज़ें ना हमने फेस की हैं. हमें फ़र्क नहीं पड़ता था. But there are people who actually get touched with it, who get hurt with this, and they take extreme steps. तो ये एक थोड़ा सा challenging था कि to step into those shoes and then live that character. That was something very, very challenging. अरे मैं तो यही बोली रही, ये इतना सीरियस सब्जेक्ट है. एक्चुअली इट इज़ एन आर्ट टू कम्युनिकेट अ मैसेज इन एन एंटरटेनिंग वे. वो भी इतना सीरियस सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को एंटरटेन करते हुए कह देना. आई थिंक दिस इज़ प्रॉब्ली एन एक्सेप्शन. आई विल से इट्स एन एक्सेप्शन. एटलीस्ट मैंने अपार्ट फ्रॉम राजकुमार हिरानी हु रियली डज यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग, कि वो बहुत ही एफर्टलेसली ना एक बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट को लोगों तक कम्युनिकेट कर देते हैं. प्रॉब्ली अक्षय इज द सेकंड फॉर मी हु आई हैव सीन इन कम्युनिकेटिंग समथिंग एज सीरियस एज दिस सो एफर्टलेसली. थैंक यू. जय सोनी. आपको बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप आए, खुशी हुई. हाँ, ये है विश्वनाथ जी और ये है अक्षत भाई, इन्हीं के लिए आए हम पिक्चर देखने. एक हमारे जूनियर है पुराने साथी सुलग्ना. हेलो खुशबू. हेलो सुलग्ना. फिल्म देखने के बाद भी आप पूछिए मुझे कैसी लगी. ट्रेलर दिखा. पूछ लो जो पूछना है, पूछ लो भाई. क्या पूछना चाह रहे हो, पूछ लो. ट्रेलर देख के तो बहुत अच्छा लगा. और आपको क्या लगता है इसे कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उस मूवी के अंदर कॉन्सेप्ट? बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ज़रूरी कॉन्सेप्ट है समाज के लिए. तो ये जहीन व्यक्ति हैं तो इन्होंने अच्छा ही लिखा बनाया होगा. हमारे पुराने मित्र हैं, ये हमारे जूनियर हैं. तो मेरी शुभकामनाएं हैं पूरी पिंकी ब्यूटी पार्लर टीम को. थैंक यू सो मच. बाकी देखने के बाद बात करेंगे. के बाद आइए आप बट मैं श्योर हूँ फिल्म अच्छी ही होगी. अरे भाई प्लीज स्टॉप. चलो चलो अब देखते हैं. पिक्चर देखने इनको भी देखते हैं. कम